Assalamu alaikum student. Today we are going to study about some insect resistance varieties because the success has been found to develop some improved variety which is resistance to insect pest. So what are these certain plants and these are the certain plants. So we will study one by one. Very first example is Brassica. So very first example is Brassica is a crop. I told you it is belongs to a very big family जिसमें cabbage family भी आती है Brassica और इसके अंदर एक variety improve variety है जिसका नाम है पूसा गौरव. तो ये improve variety, this variety is an improve variety or disease resistance variety because in from 2-3 lectures we are studying when you obtain a improved variety it has to be given a new name so it can be understood that this is the improved variety which is disease resistance, pest resistance and so on. So here Brassica is a crop in which the disease variety is a Pusa Gaurav. Pusa Gaurav. The Pusa Gaurav is a variety. Gaurav is a variety which is resistance against the insect aphids. It is a type of insect. Earlier, this insect used to have loss of the crops. Means it used to have great damage to the crops. But now it is being resistance to these aphids. Aphids is a type of insect. So Brassica, improved variety of Brassica, Pusa Gaurav, which is resistance to aphids. So this is an improved variety. Another example we will study is flat beans. Flat bean. In this Pusa Sam 2 and Pusa Sam 3. This has been developed a new names which is resistance to jacids, insect, aphids and fruit borer. ठीक है, तो ये अक्सर जो नुकसान पहुंचाते थे. जैसिड वाज एन इंसेक्ट, type of insect, aphid is a type of insect and fruit borer which usually make hole in the stems. So these are the improved variety like Pusa Sam 2 and Pusa Sam 3. It is an improved variety of flat bean. Another example which is given in your textbook is the okra. Okra is a bhindi. Okra is a bhindi and Pusa, the improved variety in this okra is Pusa Savni. And also Pusa A4. These two varieties are the insect varieties, insect resistance varieties against earlier these insects, these aphids or that is fruit borer used to make a hole in the stem, so it is resistance against the shoot and fruit borer. So these are the insects which usually attack the shoot part and the fruit. Now this Pusa Savani and Pusa A4 are the improved variety which is no more prone to these types of insect. So this means they are resistance to okra, that is bhindi we call. Okay? These are the example which is given in your textbook. Now we'll move to the next very important topic, that is tissue culture. So let's start now. Tissue culture. Should I write this out? ठीक है, अभी तुम लोग ये जरा ध्यान देना. अब यहाँ पे मैं टिश्यू कल्चर कर रहा हूँ. Tissue, or I'll try to make use of another pen. Tissue culture. When we talk about tissue culture, one thing we have to first understand is totipotency. Totipotency is very important. टोटिपोटेंसी, सबसे पहले टोटिपोटेंसी जो है वो बताने वाले जो थे वो
हेबर्ट लैंड करके थे इन 1902. ही वाज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, और उन्होंने ये टोटिपोटेंसी के बारे में बताया एंड इवन टिश्यू कल्चर के बारे में बताया. तो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो टोटिपोटेंसी का था वो हेबर्ट लैंड ने किया इन 1902 एंड ही हैज गिवन एन आइडिया, और जो परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट टिश्यू कल्चर के ऊपर उन्होंने ही किया. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज टिश्यू कल्चर अभी पढ़ना है, लेकिन टोटिपोटेंसी पहले जानना जरूरी है. टोटिपोटेंसी इज एन एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल प्लांट सेल. Totipotency is an ability of a single cell to divide and redivide and to form a new functional plant when appropriate conditions are being applied, usually in vitro condition. Vitro मतलब control condition, जैसे लेबोरेटरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी. एंड बिकॉज ऑफ दिस टोटिपोटेंसी द टिश्यू कल्चर्स कैन बी परफॉर्म. तो ये टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि ज़्यादातर यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़ना है, जैसे एक्सप्लांट पढ़ना है, कैलस फॉर्मेशन पढ़ना है, ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस पढ़ना है, जिसमें टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि ए पार्ट और ए टिश्यू एक्सरसाइज फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, usually either from the stem or from the leaves or from the roots or from the meristematic cell, and these being cultured in vitro in control condition, also in aseptic condition. What is aseptic condition? It should be free from pathogens. इसका मतलब लैमिनार एयर फ्लो होना चाहिए, फिर टिश्यू को जो है उसको स्टरलाइज करना चाहिए, और फिर उसको अलग या लैमिनार एयर फ्लो में इस्तेमाल करना चाहिए. सब इनोकुलेशन, ये लंबा प्रोसीजर, लेकिन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर ये तुम ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ. और फिर उसके बाद उससे कंप्लीट न्यू प्लांट पैदा कर लिया जाए थ्रू टोटिपोटेंसी, क्योंकि टोटिपोटेंसी उसके अंदर होता है. तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. दैट वी आर गोइंग टू वी विल स्टडी अलोंग विद द डायग्राम्स. So here tissue culture में टोटिपोटेंसी क्या है? It is an ability of a single cell to divide and redivides and to grow a new functional plant. ठीक है. और under the aseptic condition, aseptic मतलब free from pathogen, that is called totipotency. So very first it is given the ability of a single cell, a plant cell, to divide and redivide and differentiate into a mature plant, in a functional plant you can say, if placed in the appropriate environment, means suitable environment, it is called cellular totipotency. Now we'll go to the next. Now tissue culture क्या है? The culturing and growing. When you are culturing and growing in a control condition, usually in vitro, ठीक है? In vitro condition. That means in control condition. Temperature control है, humidity control है, फिर उसके बाद हार्मोन्स का जो है जितना जरूरत है प्रपोर्शन उनका वो डाला जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो, यूजुअली लेबोरेटरी कंडीशन. ठीक है. सो व्हेन यू आर कल्चरिंग और ग्रोइंग either protoplasm or cell or tissue or an organ on the nutrient media. What is nutrient media? They require some nutrient media, like soil is a nutrient media, but in laboratory we are not using the soil, instead we are using the liquid nutria या फिर solid nutria. ठीक है. And under aseptic condition means what? Under control condition where the pathogens harmful pathogens cannot interfere with it, otherwise the experiment may go wrong. ठीक है, or may fail. So here aseptic condition in vitro is known as tissue culture. Okay, who was the one? Herbert Land. Herbert Land, a famous scientist of that time, in the year 1902, that is in 1902, was the first to demonstrate the totipotency and to introduce the plant tissue culture. He was the one. Now before we go to the tissue culture, we should know certain terminologies which are very commonly used in defining the tissue culture. The first one is explant. Second is callus, and third one is organogenesis या morphogenesis. Okay, organogenesis or morphogenesis. These terms has to be understood properly to understand what organogenesis. Okay, let's start.
What is explant? Explant is a part or a tissue excised from the parent plant. आपने एक छोटा सा टिश्यू लिया है टिश्यू कल्चर के लिए, जिस प्लांट से लिया गया है आपने बहुत ही बारीक लिया है, आपने ऐसा लिया है कि 1 या 2 सेल लिया है, लेकिन उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन आपने जो निकाला है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। ये कहाँ से निकाला जाता है? पैरेन्काइमा सेल है, लिविंग टाइप के सेल्स होते हैं, आइदर फ्रॉम द रूट और फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द लीव्स और फ्रॉम द एनी अदर पार्ट लाइक मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ज्यादातर उसको प्रिफर किया जाता है, और उससे तुम क्या करोगे, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करवाओगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। मैंने एक पॉटेड प्लांट ले रहा हूं, ठीक है, ये एक पॉटेड प्लांट है, हैविंग मेडिसिनल वैल्यू और रेयर प्लांट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको। रेयर प्लांट हो सकता है, ज्यादातर उसी का किया जाता है, जो कॉमनली मिलेगा उसका टिश्यू कल्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोज प्लांट विच आर रेयर, हैविंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और हैविंग सम मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, तो उस प्लांट का अगर हमको क्लोन्स बनाने हैं, क्यों क्लोन्स बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोमैटिक सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि उनका जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल सिमिलर होगा पेरेंट्स की तरह। तो यहाँ पे ये पॉटेड प्लांट है, अब ये पॉटेड प्लांट का ये जो है ये क्या है, स्टेम है, ये क्या है, रूट है, ये जो टिप होती है ज्यादा रूट टिप या शूट टिप उसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टम, अपाइकल मेरिस्टम है। और इस ये प्लांट ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये बहुत रेयर है और इसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो अब इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो बेस्ट वे is to take the apical meristem, because even though the plant is infected but the region which is free from the pathogens are considered to be the apical region। ज्यादातर apical जो है वो रूट में भी होता है और शूट में भी होता है, तो स्टेम का लिया जाता है। समझ में आ रहा है? देन ऑल्सो यूजुअली दिस जो एक्सप्लांट लिया है उसको भी फिर स्टेरलाइज किया जाए। स्टेरलाइज मतलब क्या, जैसे कि हम उसको सर्टेन केमिकल से ट्रीट करेंगे, जैसे डेटॉल वेटॉल कैसा होता है, यहाँ पे हम डेटॉल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सर्टेन केमिकल्स का, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल हो, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड हो, तो इन सब से ट्रीट किया जाता है। सो उसके ऊपर इन केस एनी पैथोजेंस आर देयर तो वो पैथोजन मर जाएगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो ये प्लांट है, रेयर प्लांट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका, मेडिसिनल वैल्यू है, ये इन्फेक्टेड हो गया, अब इसके बहुत सारे क्लोन्स बनाने हैं, बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो टिश्यू कल्चर अप्लाई किया जाता है, उसमें से एक कहीं से भी या स्टेम से या लीफ से, अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो लीफ से, स्टेम से, कहीं से भी एक छोटा सा आप क्या टिश्यू ले लो, तो इसी को बोलेंगे एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सप्लांट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अ पार्ट और ए टिश्यू एक्साइज्ड from the parent plant, usually they are the parenchyma cell, living cell, either from the root, either from the stem, either from the leaves or meristem. This is known as explant. अब इस एक्सप्लांट को हमने हमने ले लिया इसको, अब क्या करेंगे, लेबोरेटरी में लिया है और इसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब रहेगा, बुक में डायग्राम दिया है, और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया भी दो किस्म के होते हैं, अगर आपको न्यूट्रिएंट मीडिया लिक्विड में लेना है, जैसे सेल सस्पेंशन बनाना है तो लिक्विड लिया जाता है, और अगर सॉलिड लेना है, अगर सॉलिड भी न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, इंस्टेड ऑफ सॉइल यू आर गोइंग टू टेक न्यूट्रिएंट मीडिया। जैसे कि जो चावल का पानी होता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया है, तो वैसे बहुत कॉमनली यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया हम जो है एमएस मीडिया, मैं उसको बताऊंगा एमएस मीडिया होता है क्या, पहले नॉट सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता था, आज की तारीख में जो सबसे बेस्ट माना जाता है एमएस मीडियम बोलते हैं इसको, दैट इज मोराशिक एंड शुभ ने बनाया था इसको, इसीलिए एमएस मीडिया दिया है नाम है। इस एमएस मीडिया में वो एक्स प्लांट को ट्रांसफर कर दो,
ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई कई बुक में इनॉक्यूलेशन वर्ड आया है तो हम लोग ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लांट को ट्रांसफर किया है न्यूट्रिएंट मीडिया में, और ये न्यूट्रिएंट मीडिया जो है उसको ग्रोथ लाएगा उसमें। अब जब ग्रोथ लाएगा तो आप देखोगे कि ये अच्छा, और ऊपर कुछ इस तरह से आइसक्रीम की तरह बना है। ये क्या है? ये कॉटन प्लग है, कॉटन प्लग है। इसका मतलब जो इंस्टेड ऑफ कैप से तो क्या एरिएशन रुक जाएगा, अंदर खराब होने का भी चांसेस है, तो उसके ऊपर जो है कॉटन का प्लग लगाया जाता है, जिससे डस्ट पार्टिकल अगर एयर जाती है तो फिल्टर होके जाएगी। तो इस तरह से कॉटन का प्लग लगाया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट स्टेज में यही ये जो कॉटन प्लग तो रहेगा। आप देखोगे कुछ दिनों में ये एक्स प्लांट जो फ्यू सेल्स का बना था या सिंगल सेल का बना था, उसके अंदर क्या होगी? ग्रोथ आएगी और एक लूज मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैलस। तो आप वो यहाँ पे आप देखोगे, दूसरा पेन में इस्तेमाल करता हूं। ये पहले क्या था? एक्सप्लांट। ये क्या था? एक्सप्लांट था। ये बढ़ के क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ सेल, लूज मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। अब ये टिश्यू बन गया है, सेल्स जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? टिश्यू में, बट इट इज लूज मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल, अनऑर्गेनाइज्ड। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड? इसका मतलब वो सेल कई सारे उसके सिंगल सेल से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बन गए, बट दे हैव नॉट टेकन एनी पार्ट या फंक्शन नहीं लिया है, न रूट देखने को मिला है, न स्टेम, जस्ट ए ग्रीन कलर मास उसमें नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे कैलस। तो ये देखो, ये जो मैं लिखूंगा इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कैलस। तो अभी यहाँ पे देखो, टिश्यू का एक्सप्लांट क्या है? अ पार्ट और a tissue excised from the parent plant for experiment purpose. Usually they are parenchyma cell, either from the root or from the stem or from the leaves or from the meristematic tissue. So these are called explant. Then this explant is being subjected in the nutrient media. It is being transferred to the nutrient media for further growth. When they get transformed into a mass of tissue, we have started from a cell and cells from a tissue, but these tissue are unorganized, do not organize into root, stems and leaves and flowers and fruits. किसी में भी ऑर्गेनाइज नहीं हुए, उसको बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे बेटा? कैलस। अब इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो है कैलस जो है, यहाँ पे देखो, अब ये टिश्यू के अंदर ये जो है बेटा, ये जो मैंने बनाया ये क्या था? न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडिया। अभी हम इसके बारे में टॉपिक पूरा दिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, विटामिन, हार्मोन सब होना चाहिए, तब जाके वो प्लांट को क्या करेगा? ग्रोथ में मदद करेगा। यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये क्या बना है बेटा? न्यूट्रिएंट मीडियम। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है? जो भी जरूरत है प्लांट को न्यूट्रिशन की, वो सब चीज इसमें है, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल आल्सो। फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो ये कैलस है, ये जो कैलस था, उसमें हमको कैलस के अंदर हमने ऑर्गेनोजेनेसिस करवाया है। इसका मतलब अभी तो अनडिफरेंशिएटेड मास था, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अनडिफरेंशिएटेड। सी द अनदर वर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड, दो वर्ड यूज कर सकते हैं, बोथ आर सिमिलर। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड था, उसको हमने क्या किया? उसको ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट किया। कैसे किया? अब हमने इसके अंदर रेशियो डाल दिया, इसके अंदर हमने ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन, ये दो हार्मोन जो कि प्लांट में मदद करते हैं ग्रोथ का। ऑक्सिन्स का जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो रूट फॉर्मेशन करता है, और जब साइटोकाइनिन्स का रेशियो बढ़ाएंगे तो वो शूट फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्टेम करेगा। इसका मतलब इनका वेरिंग रेशियो
प्रपोर्शन इनका थोड़ा वेरी करके डाला जाता है, जिसके वजह से इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। जो कैलस अनडिफरेंशिएटेड था, अनऑर्गेनाइज्ड था, अब वो किसमें तब्दील हो गया है, इनटू अ स्मॉल प्लांट विच मतलब डिफरेंशिएट हो गया है और छोटा सा जो है प्लांटलेट प्रोड्यूस हो गया है। और उसमें आप देखोगे कौन से हार्मोन्स का वेरिएशन मतलब रेशियो वेरी किया गया है, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स। ऐसा देखा गया है ऑक्सिन्स का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा तो इट गिव राइज टू राइजोजेनेसिस, रूट फॉर्मेशन, एंड व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स इट विल गिव राइज टू कोलोजेनेसिस, गिव राइज टू स्टेम। कोलोजेनेसिस उसका अनदर नेम है। अब उसको, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब मैंने बताया ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट एक नहीं किया जाता है, एक में रिजल्ट नहीं मिलेगा। There is a possibility because of the contamination, the experiment may not proceed further because of the failure. Fail हो जाएगा, क्यों? क्योंकि contamination हो गया। To avoid all these circumstances, the experiment is carried out in a large number. तो क्या हो गया, ये तो एक है, ऐसे सिमिलर्स कई सारे होंगे। अब क्या होगा कि इसका जो ये जो है ये अब टेस्ट ट्यूब में नहीं ग्रो हो सकता, क्योंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी कम है, फूड जो है वो क्या है इस्तेमाल हो चुका है, स्पेस नहीं है, फूड नहीं है, न्यूट्रिशन का कमी हो जाएगी, तो उसको आप थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा एक पॉट में और उसको पॉटेड प्लांट बनाया जाएगा। ऐसे कई सारे बनेंगे जिनका जीनोम बिल्कुल सिमिलर होगा एज दैट ऑफ द पेरेंट। ये पेरेंट प्लांट है और ये क्या है, क्लोन्स हैं जिनका जीनोम बिल्कुल सिमिलर होगा एज दैट ऑफ द पेरेंट्स। इस वजह से इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। यू कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये टिश्यू कल्चर का मैंने बताया, डायग्राम आपके बुक में दिया है कि ये बता दिया व्हाट इज एक्सप्लांट। फिर उसके बाद कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास, लूज मास, लूज मास ऑफ parenchyma which is undifferentiated or you can say unorganized, वो है कैलस। और उस कैलस के अंदर अगर हम साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स का रेशियो डालते हैं तो यू विल फाइंड ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। इसका मतलब उसमें से रूट, स्टेम्स और लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो दिस टर्म्स हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। अच्छा, ये टिश्यू कल्चर हो गया हमारा, एक्सप्लांट भी हो गया। अब हम लोग को जो दिया है न्यूट्रिएंट मीडिया, जब हम बहुत बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट मीडिया और द कल्चर मीडिया। अब बेटा देखो, जो एक्सपेरिमेंट हमने ये टेस्ट ट्यूब में किए हैं और मैंने बताया ऊपर क्या है, अभी खुला नहीं है बेटा, इसके ऊपर क्या रहेगा, कॉटन प्लग होगा। कॉटन प्लग क्या होगा, कॉटन का जो कॉटन आता है उसको प्लग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से एरिएशन हो जाता है और फिल्टर भी होता रहता है। डर्ट, अनवांटेड, हार्मफुल, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एंटर। और आपको मालूम है अगर वो एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे किसके अंदर, जो नॉर्मल क्लोनिंग ये नॉर्मल टिश्यू कल्चर चल रहा है उसको खराब भी कर सकते हैं। यू विल नॉट गेट द रिजल्ट दैट इन दैट केस। न्यूट्रिएंट और द कल्चर मीडिया मैं समझाने जा रहा हूँ। व्हाट इज न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडिया? न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसको टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन लेबोरेटरी, इन विट्रो कंडीशन। और इसमें सभी चीज़ होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उसमें सोर्स ऑफ शुगर भी होगा, सुक्रोज भी होगा, फिर उसके अंदर ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स भी होगी, फिर उसके अंदर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर भी होगा। सॉलिड में भी प्रोड्यूस किया जाता है लिक्विड जो होता है वो सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, सेल सस्पेंशन कल्चर टॉपिक दिया है आपके बुक में। और अगर वो सॉलिडिफाइड करना है, कैलस कल्चर के लिए इस्तेमाल करना है, सॉलिडिफाइड करना है, तो लिक्विड कल्चर को ही, जो लिक्विड मीडिया है उसके अंदर अगर को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मालूम है चाइना ग्रास जो हम खाते हैं विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गे, वो सॉलिडिफाइंग एजेंट है, उसको अगर लिक्विड न्यूट्रिएंट में मिला दिया गया तो सॉलिड या सेमी सॉलिड हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कैलस कल्चर के लिए सॉलिड मीडिया हो, सॉलिड मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और सेल सस्पेंशन के लिए हमको लिक्विड की जरूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा इसका जो पीएच होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, बिटवीन 5 to 5.8, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन टू द प्लांट, ग्रोइंग प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द कल्चर। और जो आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है वो एमएस मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। मोराशिक एंड शूक, इन्होंने सबसे पहले, इससे पहले नॉप सॉल्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता, लेकिन इससे बेटर आ गया तो आपको यूज किया जाता है।
The cultural media used for the experiment may be liquid or solid. I told you, liquid काय के लिए? Cell suspension के लिए, और solid किसके लिए? Callus formation के लिए, callus culture के लिए. The media is generally supplied with various ratio and concentration of organic and inorganic nutrients. Apart from this, if you and other vitamins, sucrose as a sugar source, and plant growth hormones, auxins and cytokinins, such as auxins and cytokinins for solid and semi-solid nutrient media. And when you want to make it solid from the liquid media, you have to just add the agar, because agar is a solidifying agent. Now, and as you know, agar is obtained from red algae. For your knowledge, the pH of medium is adjusted to 5 to 5.8, so slightly acidic. MS media mostly ये जो medium यूज किया जाता है वो MS medium यूज किया जाता है. It is after the name who has discovered this is Murashik and Shuk. These are the two people who has first prepared a common nutrient media for mostly for all different types of plants. कोई भी टाइप का प्लांट हो, चाहे वो ज़ेरोफाइटिक हो, चाहे वो एक्वाटिक हो, इनमें ये न्यूट्रिशन मीडिया चल जाता है. Based on the nature, so this is what I have explained you. Now we'll go to the next topic. Based on the nature of the explant, let's start now. So थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ. Now in your textbook, again it is given based on the nature of explant, based on nature of explant, it is being categorized into three parts, A, first, second and third. एक होता है, फर्स्ट होता है सेल कल्चर. पहला कैसा होता है? सेल को कल्चर करना है. फिर कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर किया जाता है, और तीसरे में एम्ब्रियो कल्चर. ठीक है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सप्लांट हमें मालूम है क्या है वो, अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा. एक्सप्लांट सेल कल्चर में मदद होता है. इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लांट सेल कल्चर. ये तीन टाइप के होते हैं, सेल कल्चर या फिर ऑर्गन कल्चर करवा लो, या फिर एम्ब्रियो कल्चर मतलब सीड कल्चर. समझ में आ रहा है? अच्छा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ. अगर इन विट्रो ग्रोथ मतलब जो लेबोरेटरी कंडीशन में ये ग्रो करते हैं तो दो टाइप का होता है. यहाँ पे दिया, इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्सप्लांट, और दूसरा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सप्लांट बेस्ड ऑन द टाइप of in vitro growth. In vitro means in laboratory condition, control condition. ठीक है. एक होता है कैलस कल्चर, जो अभी हम पढ़ेंगे. कैलस कल्चर जो हमने पढ़ा भी है. कैलस कल्चर के लिए क्या न्यूट्रिएंट मीडिया कौन सा यूज होता है? सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम ये इस्तेमाल होता है. इंस्टेड ऑफ सॉइल वी आर यूजिंग दैट. और दूसरा होता है सस्पेंशन कल्चर. सस्पेंशन as the word itself means the nutrient media will be in liquid form. So suspension culture, so liquid nutrient media will be required. ठीक है, will be required. So these things you have to keep in mind. Now we'll move to the next one. The next we are going to start is maintenance of aseptic condition. So just superficially I will explain what is aseptic condition. Maintenance of aseptic condition. Another name for the aseptic condition is sterilization. What is sterilization? Means all this experiment, since they are very important experiment, so they has to be carried out in absence of pathogens.
or it should be enough disease means the equipment which we are using like test tube, beaker, petri dish has to be cleaned properly. So that is been sterilized either by detergent or by autoclaving. The experiment has to be performed in a laminar airflow chamber where it should be between the two burners. So these are said to be sterilized zone, sterilized zone. So next topic which we are going to study in detail, I have given you an idea that all this experiment has to be carried out in a controlled manner, and it should be free from pathogens. Otherwise, you know the reason, the experiment will be get contaminated and you will not get the result. So this is called aseptic condition, also known as sterilization. Next time we will study with the aseptic condition or sterilization. Thank you, student.